નમસ્તે. ટાટ સેકન્ડરી અને હાયર સેકન્ડરી મુખ્ય પરીક્ષા હિન્દી વિષયની તૈયારી કરતા તમામ ભાઈઓ બહેનોનું હું ગોળકીયા પ્રવીણભાઈ હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હિન્દી ભાષા શિક્ષણ પદ્ધતિ એટલે કે જે પદ્ધતિશાસ્ત્ર છે એના ઘણા બધા વિડીયો આપણે અગાઉ મૂકી ચૂક્યા છીએ. આજે આ લેક્ચરની અંદર આપણે શ્રવણ કૌશલ્ય, વાંચન, લેખન, પઠન, આ જે કૌશલ્ય છે એની સંકલ્પના અને એનું પાઠ નિયોજન કઈ રીતનું હોય છે તેની ચર્ચા આજે કરવાનો છે. 2023ની પરીક્ષામાં વાંચનને લગતો આખો પ્રશ્ન છે એ પૂછાઈ ગયો હતો. તો આ વખતે કદાચ આ ચારમાંથી કોઈ પણ એક પ્રશ્ન જો આવે, મોટા પ્રશ્ન કે નાના પ્રશ્નમાં, તો આપણે ખૂબ સારી રીતે લખી શકીએ. એ માટે એની વિગતવાર ચર્ચા છે કરવાની છે. કદાચ ભાષા શિક્ષણની પાઠ આયોજન પૂછે આમાંથી તો પણ આપણે ખૂબ સારી રીતે લખી શકીએ. એટલા માટે વિડીયો ખૂબ મહત્ત્વનો છે. અંત સુધી જોજો અને ચેનલમાં તમે નવા હો તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી કરીને આવા પદ્ધતિશાસ્ત્ર અને હિન્દી વિષયના વિડીયો છે તમારા સુધી સૌથી પહેલાં મળતા રહે. અને બીજું ખાસ કે આની જે ટાટ સેકન્ડરી અને હાઈ સેકન્ડરી છે એની મુખ્ય પરીક્ષાની વિષયવસ્તુ, પદ્ધતિશાસ્ત્ર, પ્રયોજનમૂલક અને અન્ય જો PDF તમારે જોતી હોય તો પણ તમને મળી રહેશે. એની આખી પ્રોસેસ છે એ તમે સૌ જાણો જ છો, પણ ચેનલમાં નવા હો તેના માટે આપણે ફરીવાર યાદ કરી દઈએ કે કઈ રીતની તમે PDF મેળવી શકશો. આ રીતની એક નાનકડી પ્રોસેસ છે જેમાં તમે ટાટ સેકન્ડરી અને હાઈ સેકન્ડરી માટે એમાં ખાસ હાયર સેકન્ડરીની વાત કરીએ તો ધોરણ 11, 12 હિન્દી પદ્ધતિશાસ્ત્ર અને પ્રયોજનમૂલક હિન્દી, આ ચારની કોમ્બો ઓફર છે એ 349માં તમને મળી રહેશે. અહીં જે વોટ્સએપ નંબર આપેલો છે તેમાં તમારે કોલ કરવાનો અથવા એમાં મેસેજ કરશો તો એક નાનકડી જે 349ની ફી ભરી અને તમે આ PDF છે મેળવી શકશો, જે તમને વોટ્સએપની અંદર મળવાપત્ર થશે. કારણ કે હાયર સેકન્ડરીના તમે ખૂબ જ મોટા પગારદાર થશો, એટલે કે 50,000 પગારની શરૂઆત થશે. તો અત્યારથી ખૂબ સારી મહેનત કરીએ અને એ મહેનતથી આપણે આગળ વધીએ તે માટે એક નાનકડો પ્રયત્ન પણ રહેલો છે. હવે જોઈએ આપણે આ પદ્ધતિશાસ્ત્રના કેટલાક પ્રશ્નો છે અને તેની ચર્ચા. ભાઈ બહેનો, સૌથી પહેલાં આપણે શ્રવણ કે શિક્ષા, શ્રવણ જે કૌશલ્ય છે તેની ચર્ચા છે કરવાની છે. સૌથી પહેલાં એની પ્રસ્તાવનાની ચર્ચા કરીએ તો भाषा शिक्षा के क्रम को यदि सूक्ष्मता से देखना चाहे तो दो पहलू दिखाई पड़ते हैं. पहलो है बोधात्मक और क्रियात्मक. बोधात्मक जो भाषा शिक्षा के सिर्फ ग्रहण करने की वृत्ति की ओर ले जाता है, और क्रियात्मक जो क्रिया की ओर ले जाता है. यहाँ याद रखना चाहिए कि जहाँ तक ग्रहण किया हुआ ज्ञान क्रियात्मक न हो सके वहाँ तक भाषा ही शिक्षा अपूर्ण है. बोधात्मक और क्रियात्मक के दो विभाग इस तरह बांट सकते हैं. તમે એક નાનો એવો ચાર્ટ જોઈ શકો છો જેમાં કે ભાષા શિક્ષા એના બે પ્રકાર છે, બોધાત્મક અને ક્રિયાત્મક. બોધાત્મકના બે પ્રકાર છે, શ્રવણ અને વાંચન, અને ક્રિયાત્મકના બે પ્રકાર, કથન અને લેખન. આ બોધાત્મકની અંદર છે તમારે બોધ પ્રાપ્ત કરવાનો છે, એટલે તમે પહેલાં આપેલું છે કે એમાં ભાષા શિક્ષણની સિર્ફ ગ્રહણ કરવાની વૃત્તિ છે. શ્રવણ સાંભળવા માટેનું છે એટલે ગ્રહણ છે, વાંચન છે એ તમારે ગ્રહણ કરવાનું છે, અને ક્રિયાત્મકમાં ક્રિયા કરવાનું છે, કથન છે એ બોલવાનું છે, લેખન છે એ કામ કરવાનું છે, ઓલું સાંભળવાનું છે, આ બંને છે કામ કરીને બતાવવાનું છે. એટલે આ રીતના બે પ્રકાર છે પડે છે. તમને પરીક્ષામાં પ્રશ્ન પૂછે કે ભાષા शिक्षण सूक्ष्मता से उसके क्रम बताइए तो बोधात्मक और क्रियात्मक. बोधात्मकમાં બે પ્રકાર અને क्रियात्मकના બે प्रकार. इसको क्रमशः हम देखें तो आँख से अधिक कान पर ध्यान देना चाहिए. इन उद्देश्यों से तय होता है कि हमें पहले दो बातें ध्यान में रखनी चाहिए, ज्ञानेंद्रिय और क्रियेंद्रिय. सबसे पहले ज्ञानेंद्रिय सक्रिय होती है, बाद में क्रियेंद्रिय क्रिया के रूप में अनुसरण करती है. यदि इस क्रम को हम अनुबंध रखें तो भाषा शिक्षा का कार्य सरल एवं सफल हो सकता है. इसलिए भाषा शिक्षक को सबसे पहले श्रवण पर ध्यान देना चाहिए और बाद में कथन पर ध्यान देना चाहिए. इस सिद्धांत को हम आकृति के रूप में इस प्रकार रख सकते हैं. તમે આ આખી આકૃતિ જોવો છો, કોઈ એક માણસનું છે એની જુદી જુદી જ્ઞાનેન્દ્રિયો બતાવી છે. સૌથી પહેલાં શ્રવણ શક્તિ છે મગજમાં છે, ત્યારબાદ એ પઠન વૃત્તિ એટલે કે વાંચનની આખી પ્રવૃત્તિ, કારણ કે સાંભળ્યા પછી વાંચે, ત્યારબાદ એ બોલી શકે અને પછી લખી શકે. આમ આખા
अलग अलग एराओ द्वारा से आखुं चित्र से तमारी समक्ष बतावવાનો प्रयत्न करेलो छे। आ ते तमे जे आकृति जोईने मुख्य संदेश शो है तो आँख, दृष्टि, पठन और कान श्रवण के माध्यम से बाहरी ज्ञान दिमाग तक पहुँचता है यानी ग्रहण कीधुं कहेवाय। अने दिमाग उस विचार को प्रोसेस करके जीभ, कथन और हाथ लेखन के जरिए बाहर प्रकट करता है, अभिव्यक्त करता है। आँख और कान ग्रहण की हुई चीज़ को दिमाग तक पहुंचाते हैं और दिमाग जीभ व हाथ के जरिए विचार प्रदर्शित करते हैं। इस तरह पहले श्रवण की ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बालक जैसा सुनता है वैसा बोलता है। अहिंदी भाषी प्रांतों की बात करें तो उन लोगों को हिंदी भाषा का वातावरण नहीं मिलता और मातृभाषा का वातावरण हिंदी सीखने में एक तरह से बाधक है। अतः हिंदी भाषा के श्रवण की ओर शिक्षा पर भार देना अत्यंत आवश्यक है। हम सब जानते हैं कि भाषा सुनने से सीखी जाती है और किसी भी भाषा को सीखने का यह सबसे सरल तरीका भी है। श्रवण की संकल्पना आने આપણે एक नानी व्याख्या જોઈએ अथवा कोने कही शकाय तो इस सिद्धांत के मुताबिक बच्चों की ज्ञानेंद्रिय क्रियाशील होती है। आँख और कान ग्रहण की हुई चीज़ को दिमाग तक पहुंचाते हैं और दिमाग जीभ और हाथ से ग्रहण की हुई चीज़ अभिव्यक्त करता है। तो सुनने का काम कान करता है। कोई भी व्यक्ति ध्वनि संकेतों द्वारा भावों की मौखिक अभिव्यक्ति करता है, उसे कान श्रवण करता है। सुनने का अर्थ सिर्फ इतना ही नहीं कि व्यक्ति जो कुछ बोलता है उसे सुन लेना, बल्कि अवधानपूर्वक सुनना या श्रवण करना। भाषा शिक्षा का यह आवश्यक अंग है। सुनने की शिक्षा के विषय में हमारी पाठशालाओं में नहीवत कार्य होता है। आजकल स्कूलों में श्रवण कौशल्य विकास की अवहेलना की जा रही है। श्रवण की कुशलता का जीवन में अत्यधिक महत्व है। तो आ बधी श्रवणनी वात करी। हवे जोईए आपणे श्रवण कौशल्य विकास के पाठ आयोजन। कदाच तमने 5 मार्क में के 4 मार्क में प्रश्न आ जाए तो श्रवण कौशल्य विकास पाठ आयोजन करो अथवा श्रवण कौशल्य विकास के पाठ आयोजन कीजिए। तो कई रीतनु आवे छे मुद्दा साथे माहिती जोईए। अपेक्षित पूर्व ज्ञान के बारे में सोच विचार। शिक्षक पहले सोच लेगा कि विद्यार्थी में कितना पूर्व ज्ञान है, कान की कमी है या नहीं। इसकी जांच भी डॉक्टर के पास करवा लेगा और विद्यार्थी की कक्षा शक्ति के मुताबिक अपना काम शुरू करेगा। सामान्य उद्देश्य विद्यार्थी काव्य या गद्य का अर्थ अनुसार ग्रहण करे। विशिष्ट उद्देश्य विद्यार्थी अवधानपूर्वक सुन सके। विद्यार्थी काव्य या गद्य को सुनकर विषय वस्तु को अपने शब्दों में कह सके। विद्यार्थी काव्य या गद्य सुनकर संक्षेप में सार कह सके। विद्यार्थी काव्य या गद्य सुनकर उसके शीर्षक की चर्चा कर सके। विद्यार्थी श्रवण के जरिए नए शब्दों के अर्थ पहचान सके। विद्यार्थी काव्य या गद्य सुनकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे सके। शैक्षणिक उपकरण अपरिचित काव्य या गद्य, टेप रिकॉर्डर, शब्द कसौटी, मूल्यांकन कसौटी के लिए लिथोग्राफ। शैक्षणिक प्रवृत्ति तो शिक्षक की एक ओर से कथन, काव्य ज्ञान, पठन, प्रश्नोत्तरी, विद्यार्थियों की ओर से श्रवण और प्रश्नों के उत्तर। शैक्षणिक प्रविधि જોઈએ હવે એમાં પહેલા છે प्रस्तावना। शिक्षक विद्यार्थियों को हिंदी में सामान्य सूचना देंगे, विद्यार्थी उसका पालन करेंगे। इस तरह विद्यार्थियों की श्रवणेंद्रिय की जांच करेंगे और इसके बाद इस प्रकार के उद्देश्य कथन करेंगे। उद्देश्य कथन आज एक तास में हम श्रवण कौशल्य विकास की शिक्षा करेंगे। प्रस्तुतिकरण शिक्षक काव्य या गद्य का संक्षेप में सार विद्यार्थियों को कह देंगे। बाद में काव्य का गान आरोह अवरोह के साथ करेंगे। यदि गद्य होगा तो पठन करेंगे। हम तो यही कहते हैं कि काव्य ज्ञेय हो तो भी पठन करना। श्रवण कौशल्य के लिए पठन करना अत्यंत आवश्यक है। हाँ, पठन भाव के मुताबिक आरोह अवरोह के साथ होना चाहिए। पठन इस प्रकार होगा कि विद्यार्थियों नए शब्दों के अर्थ संदर्भ बातों से अपने आप समझ ले। यदि आवश्यकता हो तो नए शब्दों के अर्थ बताए जा सकते हैं। अभ्यास જોઈએ। शिक्षक ने पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार गद्य या पद्य का पठन करके कसौटी कर ली और इस तरह अभ्यास का पूरा काम किया गया। अनुकार्य
रेडियो श्रवण करके संक्षेप में नोंद तैयार करने को कहा जा सकता है, या व्यक्ति विशेष प्रवचन की संक्षेप में नोंद तैयार करने भी कहा जा सकता है। तो इस तरह इस श्रवण कौशल की पाठ आयोजन बन सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बोलचाल यानी कि कथन की भाषा शिक्षा के उद्देश्य बताइए। विद्यार्थी मित्रों, आ प्रश्न पण पूछावानी शक्यता है कि कथन की भाषा शिक्षाना मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं, विद्यार्थी सरल, स्पष्ट एवं शुद्ध भाषा में विचारों की अभिव्यक्ति कर सके। दूसरा है अपने अनुभवों और भावों को प्रभावपूर्ण शैली में दूसरे के सम्मुख अभिव्यक्त कर सके। तर्कयुक्त, युक्ति संगत रीति से विचारों का प्रतिपादन कर सके। दूसरों के अयोग्य विचारों का विरोध भी विनयपूर्वक और तर्कबद्ध का साथ संयत रूप से कर सके। शाला में या जाहिर में चर्चा सभा में भाग ले सके। श्रोताओं को प्रभावित कर सके ऐसा अच्छा वक्ता बन सके। वर्ग में प्रश्नोत्तर, चर्चादी में, पैनल वाद विवाद में और वक्तृत्व स्पर्धा में हिस्सा लेकर व्यक्तित्व बढ़ावे। नाटक आदि में, एकोक्तियों में एवं रोल प्ले आदि में भाग लेकर वह भाषण कला, बोलचाल पर अधिक प्राप्त करे। धीरे धीरे असंस्कृत, असभ्य भाषा और उच्चार आदि दोषों का परिहार कर सके। मुशायरे, कवि सभाओं, स्वाध्याय मंडलों इत्यादि में शरीक और मनोरंजन करा सके तथा समय का सदुपयोग कर सके। प्रश्नों को पूछकर अपनी शंकाओं का समाधान कर सके। शुद्ध, सरल, निराडंबरी सादी भाषाओं में उत्तर देना तथा बातचीत करना सीखे। अपनी बोलचाल द्वारा आदान प्रदान करके सहयोग, भावात्मक ऐक्य, भातृत्व, राष्ट्रप्रेम आदि उच्च आदर्शों को प्राप्त कर सके। छात्रों को इस योग्य बनाना कि उन्होंने जो देखा है, पढ़ा हो, अनुभव किया हो, उनका विवेचन युक्तिपूर्ण शुद्ध भाषा में दूसरों के सामने भी कर सके। छात्रों अपरिचित व्यक्ति के सम्मुख भी व्यवहार भद्रतापूर्ण तथा उनके साथ मधुर तथा संयत भाषा में व्याप्त वार्तालाप कर सके। त्यार पछीनो छे जिन बच्चों को जिन बातों में रुचि हो उन विषयों पर वे स्वाभाविक रूप से बिना किसी प्रयास के वार्तालाप कर सके। तो आ रीते विद्यार्थी मित्रों આપણે આ વિડીયો દ્વારા એક શ્રવણ કૌશલ્યની ચર્ચા છે કરી। હવેના વિડીયોમાં છે એ બાકીના જે કૌશલ્યો છે વાંચન કૌશલ્ય, પઠન લેખન એની ચર્ચા છે કરશું, કારણ કે વિડીયો ખૂબ લાંબો થઈ જાય છે અને એટલી માહિતી પણ તમારા માટે ખૂબ ઉપયોગી છે, જરૂરી છે। હવે પછી બાકીના જે કૌશલ્યો છે તેની ચર્ચા આપણે વિડીયોમાં કરશું। ત્યાં સુધી દરેક વિદ્યાર્થીની પરીક્ષાની હાર્દિક શુભકામનાઓ।